Hello everyone, this is the second lecture of surface chemistry. In previous lecture we have discussed adsorption, and in this lecture we are going to discuss a new topic, that is catalysis. So let's see what is the meaning of catalysis. As you know about a term that is called catalyst. So what is a catalyst? A catalyst is a substance which alters, which changes the rate of a chemical reaction without getting consumed in the reaction. So the substance which alters the rate of a chemical reaction without getting consumed in the chemical reaction is known as catalyst, and this phenomenon is known as catalysis. So the process of increase or decrease of the reaction due to presence of a catalyst, that is called catalysis. तो catalyst किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है. तो कैटलिस्ट की वजह से कोई भी रिएक्शन फास्ट हो सकती है और स्लो हो सकती है, और इसी फिनोमेनन को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालिसिस. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस. वन इज पॉजिटिव कैटालिसिस एंड अदर इज नेगेटिव कैटालिसिस. सो द कैटालिसिस in which the rate of reaction increases is known as positive catalysis. So remember, the rate of reaction increases, while the catalysis in which the rate of reaction decreases is known as negative catalysis. So there are two types of catalysis on the basis of what? On the basis whether the catalysis increases or decreases the rate of reaction. So if the rate of reaction increases due to catalysis, that catalysis is known as positive catalysis. If rate of reaction decreases due to catalysis, that is called negative catalysis. तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि अगर कोई भी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कैटालिसिस हो जाएगा. डिक्रीज करता है तो नेगेटिव कैटालिसिस हो जाएगा. So let's see some examples of positive and negative catalysis. If nitrogen and hydrogen combine to form ammonia, then you know that iron powder is used as a catalyst. So this is a पॉजिटिव कैटलिस्ट. वाई? बिकॉज इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो अगर हम आयरन पाउडर यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो दिस इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट. लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट. इफ यू विल सी अ रिएक्शन दैट इज CHCl3 plus O2, it is going to form COCl2 plus HCl. So in this reaction we use C2H5OH, that is ethyl alcohol. Now this ethyl alcohol decreases the rate of reaction. So this process, this phenomenon will be called negative catalysis, and these substances are called negative catalysts. So आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव कैटालिसिस हो रहा है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, और आयरन क्या है? कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है. तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया और ये फिनोमेनन पॉजिटिव कैटालिसिस हो गया. यहाँ पे C2H5OH क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है. तो ये क्या हो गया? निगेटिव कैटलिस्ट हो गया, और ये जो फिनोमेनन है दैट इज नेगेटिव कैटालिसिस. तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी. अब हमको एक और टर्म पे ध्यान देना है, दैट इज प्रोमोटर एंड पॉइजन. व्हाट आर प्रोमोटर्स एंड व्हाट आर पॉइजन्स? तो कैटलिस्ट की तरह दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं. दे हेल्प द कैटलिस्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द रिएक्शंस. तो ये कैटलिस्ट के साथ काम करते हैं टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो द सब्सटेंस which increases the activity of catalyst is known as promoters, while the substances which decrease the activity of catalyst are known as poisons. तो वो substances जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब कैटलिस्ट और अच्छे तरीके से काम करे, तो उसके लिए जो कैटलिस्ट की हेल्प करते हैं तो वो प्रोमोटर्स होते हैं, जबकि जो कैटलिस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते हैं, डाउन करते हैं, उनको हम कहते हैं पॉइजन्स. तो ध्यान रखना है आपको,
promoters and poisons, they do not directly increase or decrease the rate of reaction, but they help catalyst to affect the rate of reaction, क्योंकि ये कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. अब कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे भी फर्क पड़ेगा. तो ये डायरेक्टली तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हैं, बट वो कैटलिस्ट की हेल्प कर सकते हैं या कैटलिस्ट के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं. सो प्रोमोटर्स और पॉइजन्स दो सब्सटेंसेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर N2 + 3H2 विल फॉर्म 2NH3, तो यहाँ पे Fe के साथ एक और सब्सटेंस हम यूज करते हैं, दैट इज मोलिब्डेनम. तो मोलिब्डेनम यहाँ पे क्या करता है? मोलिब्डेनम जो कैटलिस्ट है, दैट इज आयरन पाउडर, उसकी हेल्प करता है, उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है. उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन और भी इंक्रीज हो जाता है. तो ये क्या है? एक प्रोमोटर है. तो ये हेल्प कर रहा है किसको? कैटलिस्ट को. तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो मोलिब्डेनम होगा वो हेल्प करेगा टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. बट आपको ध्यान में ये रखना है कि ये डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को. ये कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा. तो डिफरेंस है कैटलिस्ट और प्रोमोटर में. द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कैटलिसिस. सो बेसिकली देयर आर two types of catalysis. One is homogeneous and other is heterogeneous catalysis. So let's see what is homogeneous catalysis. The homogeneous catalysis is the catalysis in which all the reactants as well as catalysts are in the same phase. तो ऐसा कैटलिसिस जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सब क्या हों? सेम फेज में हों. अगर सारे के सारे लिक्विड्स हैं तो सब लिक्विड्स होंगे, अगर सारे गैसेस हैं तो गैसेस ही होंगे. तो रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट शुड हैव इन सेम फेज. वो एक एग्जांपल देख लेते हैं. लाइक SO2 + O2 is going to form SO3. So all these substances are gases, and if you use a catalyst, that is nitric oxide, that is NO, this is also a gas. So you can see these reactants are gases as well as the substance that is used as a catalyst, that is also a gas. तो यहाँ पे अगर सारे के सारे reactants और कैटलिस्ट, प्रोडक्ट नहीं, सारे के सारे रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट अगर गैसियस स्टेट में हैं तो ये क्या होगा? homogeneous catalysis. Now why is it called homogeneous catalysis? Because if all of them are in same phase, they can get mixed up easily. So that's how they can get mixed up homogeneously. So therefore this is called homogeneous catalysis. Let's see one more example, that is CH3 COO C2H5 plus H2O. So we use H2SO4 here. So it is going to form CH3COOH plus C2H5OH. Now this is a liquid, this is a liquid, this is a liquid, liquid and liquid. So here you can see all the catalyst and reactants are in same phase. सारे के सारे क्या हैं? लिक्विड में हैं. तो कैटलिस्ट हो या आपके रिएक्टेंट्स हो, सारे के सारे सेम फेज में. तो यू कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटलिसिस. तो लिक्विड्स आपस में इजीली मिक्सअप हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिसिस. द नेक्स्ट topic, that is heterogeneous catalysis. This is another type of catalysis. So the catalysis in which the catalyst and the reactants are in different phase, means जो catalyst होंगे वो अलग phase में होंगे और जो reactants होंगे वो अलग phase में होंगे. For example, N2 plus 3H2 will form 2NH3. So it is a gas, nitrogen is a gas, and Fe is used as catalyst. It is a solid. So you can see the reactants are in gaseous state while iron that is in solid state. तो catalyst solid state में है, जो आपके reactants हैं वो gaseous state में है. So this will be called heterogeneous catalysis. तो hope कि आपको ये बात समझ में आ गई, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटलिसिस के बीच में डिफरेंस क्या है. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, दैट इज SO2 plus O2 is going to form SO3 in the presence of platinum. तो प्लेटिनम क्या होता है? सॉलिड होता है. दिस इज गैस, दिस इज
gas. So you can see here reactants are in gaseous state, catalyst is in solid state. So this is the example of heterogeneous catalysis. So hope you have understood the difference between homogeneous and heterogeneous catalysis. The next topic is theory of homogeneous catalysis or intermediate compound theory. Now the question is, why do we need this theory? So we need this theory to explain the working of catalyst, the process of catalysis. तो जैसा कि हमको पता है कि एक कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, लेकिन हमको अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि ऐसा होता क्यों. व्हाई डज अ कैटलिस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. तो डिफरेंट थ्योरी के बेसिस पे हमको इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलता है. व्हाई डू द कैटलिस्ट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. तो जरा देखते हैं कि होमोजीनियस कैटलिसिस की इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या कहती है. तो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, व्हेन two substances or more substances react to form a product and we use a catalyst in the process, then these reactants will react with the catalyst first and will form an intermediate substance or intermediate compound, and then this intermediate compound gives the product and catalyst. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट्स है और हम उस रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले उस कैटलिस्ट के साथ एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे जिसको आप कहेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड, और फिर बाद में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में. तो इस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो चेंज हो जाती है, वो एनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हैं तो किसी भी प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, SO2 plus O2 will give SO3. So this is a reaction and we are not using any catalyst. तो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी स्लो. ये प्रोसेस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2SO2 that is gas plus O2 that is also gas will give 2SO3 in the presence of NO. It is going to form SO3 and this is faster as compared to this process. तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक कैटलिस्ट यूज़ किया है और दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. तो इसकी हेल्प से होता क्या है कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन होता है इट रिएक्ट्स विद NO. So it will form NO2. Now NO2 will react with SO2 and form NO plus SO3. अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे इन दोनों में तो ओवरऑल रिएक्शन आपको यही मिलेगी. इफ़ यू विल ऐड दीज टू रिएक्शंस तो you can multiply this with 2 and you can cancel out these 2NO then 2NO2. So what are you going to get? 2SO2 plus O2 will give 2SO3 and NO is catalyst, क्योंकि लास्ट में NO तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा. तो ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी की एक सब्सटेंस बनता है. कौन सा सब्सटेंस बनता है जिसको आप क्या कहते हो, इंटरमीडिएट कंपाउंड. तो यहाँ पे ये सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फर्दर रिएक्ट करके कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, एनहेंस हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड में बिना किसी कैटलिस्ट के तो रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. लेकिन पहले अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ईजिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बहुत ईजिली वो फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को जल्दी ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है. तो ये प्रोसेस है, तो इसमें ज़्यादा स्टेप्स, लेकिन ये ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू दिस. तो दैट्स वाई फ्रॉम द इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन व्हाई द कैटलिसिस वर्क और व्हाई डज द कैटलिस्ट एनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन.
तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों किसी भी कैटलिस्ट की हेल्प से हम रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर सकते हैं। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। आपको ये ध्यान में रखना है, ये थ्योरी किसके लिए है? होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए। तो आपको एक होमोजीनियस कैटालिसिस की, और अब हम डिस्कस करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की थ्योरी क्या है। तो आपको ये दोनों थ्योरीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज theory of heterogeneous catalysis, that is also called adsorption theory. So we will explain heterogeneous catalysis on the basis of adsorption theory, as we have discussed adsorption in previous video. If you have not watched that video yet, please watch that video first. I am giving you link in the description. तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एड्सॉर्प्शन थ्योरी, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या कहती है? ये कहती है कि जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है ये कुछ स्टेप्स में होता है, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन। द फर्स्ट स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले क्या होता है? द रिएक्टेंट पार्टिकल, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट की सरफेस की तरफ जाएंगे। देन द सेकंड स्टेप दैट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो एक बार अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स सरफेस की तरफ जाएंगे कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट उनको क्या करेगा? अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा। सो द सेकंड स्टेप इज द एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। देन once the catalyst absorbs the molecules of reactants, what will happen after that? The reactants will react on the surface of catalyst and will form a product. तो तीसरे स्टेप में जब एड्सॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे सरफेस पे और एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। एंड वंस द प्रोडक्ट इज फॉर्म, द नेक्स्ट स्टेप इज डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो प्रोडक्ट जब एक बार फॉर्म हो गया तो उसके बाद जो प्रोडक्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? वो सरफेस से मूव कर लेंगे। डिसॉर्प्शन आपको पता है, दैट इज रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के सरफेस से अगर आप पार्टिकल्स को रिमूव करते हो दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन होगा किसका? प्रोडक्ट का। तो अगर प्रोडक्ट एक बार फॉर्म हो गया तो इट विल लीव द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। Now the last step, that is diffusion of product away from the surface of catalyst, because it has already left the surface of catalyst। जो प्रोडक्ट है उसने ऑलरेडी सरफेस छोड़ ली है कैटलिस्ट की। तो अगर एक बार उस सरफेस से सेपरेट हुआ तो उसके बाद इट विल मूव अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से वो अलग हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस विल कीप गोइंग ऑन, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, वो सरफेस छोड़ के चला गया। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? द न्यू मॉलिक्यूल्स विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। Then again the same process will keep going on, and that's how the heterogeneous catalysis takes place. So hope you have understood the theory of heterogeneous catalysis. We can show it with the help of a diagram. Suppose this is the surface of catalyst. Now what will happen on the surface of catalyst? On the surface of catalyst there will be adsorption of reactant molecules. तो मान लेते हैं ये सरफेस है कैटलिस्ट की एंड दीज आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, अब ये रिएक्टेंट्स मान लेते हैं कंबाइन होकर इनको प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? देयर विल बी डिफ्यूजन टुवर्ड्स द कैटलिस्ट। दिस इज द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, दीज टू आर रिएक्टेंट्स, सो they will move towards the surface of catalyst and get adsorbed there. So what will happen? Again the reactant molecules will move towards the catalyst and will get adsorbed on the surface of the catalyst. तो यहाँ पे ये adsorb हो जाएगा. Now what will happen after it is absorbed? After the second point, what will happen? The reactant molecules will react with each other and they will form a product. So suppose these A and B are going to form a product AB. Let's say the product is AB, so they will combine chemically and will form a product AB. The product is already formed, so once the product is formed, the next step is desorption from the surface of catalyst. So in the last step there will be desorption from the surface of catalyst. So this is your product.
तो आपको दिख रहा है ये 5 स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में ये डिफ्यूज होंगे उसकी तरफ और सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे दूसरे स्टेप में. देन आफ्टर द एड्जॉर्प्शन दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, एंड वंस द प्रोडक्ट इज फॉर्म दे विल move away from the surface of the catalyst, and in the end they will diffuse away from the catalyst. तो ये आपका heterogeneous catalysis हो गया, जिसकी हेल्प से आप heterogeneous catalysis को explain कर सकते हो. तो hope you have understood this topic. So let's discuss the new topic, that is important features of catalyst. कुछ कैटलिस्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उनमें 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. वन ऑफ देम इज एक्टिविटी एंड सेकंड इज सेलेक्टिविटी. सो व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट? द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन. कोई भी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कितना इंक्रीज कर सकता है, दैट इज इट्स एक्टिविटी. मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होती है, लेकिन अगर हमने कैटलिस्ट यूज़ किया और कैटलिस्ट यूज़ करने से उसका जो रिएक्शन है वो 10 टाइम्स हो गया, तो आप बोलोगे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है. 100 टाइम्स हो गया तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है. अगर 1000 मिलियन टाइम हो गया तो ये बहुत ही एफिशिएंट है, इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. तो एक्टिविटी मीन्स टू व्हाट एक्सटेंट अ कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी. तो होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. देन द सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट. सो व्हाट इज द सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट? लेट्स सी एन एग्जांपल. इफ यू विल यूज C2H5OH and copper as a catalyst, so it will form CH3CHO plus H2O, 623 Kelvin. At same temperature C2H5OH, if you will use another catalyst, that is Al2O3 at 623 Kelvin, so it will form CH2 double bond CH2 plus H2. Now you can see that different catalysts are used for different reactions, even if you will use same reactants. So this is called the selectivity of a catalyst, that which catalyst is going to enhance which reaction or which catalyst is responsible for which reaction. That is called selectivity. It means a particular reactant is efficient in a particular reaction. मतलब कि अगर यहाँ पे आप C2H5OH को हीट करते हो कॉपर के साथ, कॉपर यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे वो फॉर्म कर रहा है CH3CHO, दैट इज एसिटाल्डिहाइड. लेकिन अगर आप सेम के लिए कैटलिस्ट यूज़ कर दो, कैटलिस्ट का तो कोई रोल नहीं है रिएक्शन में, तो इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन. तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपको कि आपने सब कुछ सेम रखा, रिएक्टेंट सेम रखा, लेकिन आपने कैटलिस्ट चेंज किया तो उससे रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैटलिस्ट डिफरेंट रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं. डिफरेंट रिएक्शंस के लिए आप डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे. ऐसे नहीं कि अगर कॉपर एक कैटलिस्ट है किसी रिएक्शन में तो हर रिएक्शन में आप कॉपर कैटलिस्ट यूज़ करोगे. अलग अलग रिएक्शंस के लिए हम अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कि आपको कौन सी रिएक्शन के लिए कौन से कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो कैटलिस्ट के नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा कैटलिस्ट किस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज enzyme catalysis. So to understand enzyme catalysis, first of all we have to understand what are enzymes. Enzymes are the proteins which are found in the body of any living organism, and they enhance the chemical reactions that take place in the body. So it means the enzymes are substances which act as biocatalysts, the chemical reactions which take place in the bodies of living organisms. तो आपको ध्यान में रखना है कि एंजाइम कैटलिसिस क्या होता है. एंजाइम्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्ट करते हैं एज बायोकैटलिस्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. तो कुछ केमिकल प्रोसेसेस देख लेते हैं जिनमें एंजाइम्स हेल्प करते हैं. सो देयर आर सो मेनी केमिकल प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन द बॉडी. तो फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, glucose to C2H5OH plus CO2. So this is done by a catalyst that is called zymase.
उसी तरीके से अगर आप बहुत सारी रिएक्शंस को देखेंगे, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, सो सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज and fructose with the help of invertase. So invertase is a biocatalyst or invertase is an enzyme. तो zymes एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा C2H5OH और CO2 में. नाउ और भी कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल माल्टोज. सो माल्टोज इज कन्वर्टेड टू glucose with the help of an enzyme that is called maltase. तो ऐसे बहुत से आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में with the help of an enzyme that is called lactase. Similarly, urea is converted to ammonia with the help of the enzyme called urease. तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं जो यूज होते हैं एज एन एंजाइम इन एंजाइम कैटालिसिस. द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. तो कैटालिसिस की वजह से भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता है. कैटालिस्ट काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं एंड दे हैव हाई एक्टिविटी, बट देयर आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. वन ऑफ देम इज स्पेसिफिसिटी. तो जनरली कैटलिस्ट काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, बट एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक. एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं और कोई भी एंजाइम इतना स्पेसिफिक होता है कि अ पर्टिकुलर एंजाइम इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. अगर हम एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एक रिएक्शन के लिए सिर्फ एक ही एंजाइम यूज होगा. एक एंजाइम किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन में नहीं यूज होगा, या फिर किसी एक केमिकल रिएक्शन के लिए दो एंजाइम्स यूज नहीं होंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा था कि ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज जाइमेज. तो जाइमेज ही हम यूज करेंगे, कोई दूसरा. अगर हम इन्वर्टेज यूज करते हैं तो इन्वर्टेज ये काम नहीं कर सकता है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इन्वर्टेज की, तो इन्वर्टेज का काम क्या होता है? टू कन्वर्ट सुक्रोज टू ग्लूकोज. तो वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है. तो इन्वर्टेज किसी दूसरी रिएक्शन में यूज नहीं हो सकता है, नहीं यहाँ पे आप इन्वर्टेज की जगह कोई दूसरा कैटलिस्ट यूज कर सकते हो. तो इट मीन्स द एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक. देन द सेकेंड पॉइंट दैट इज एंजाइम्स हैव हाई एफिशिएंसी. एंजाइम्स की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है एंड दे आर so high that they can increase the rate of reaction up to a million times तक वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा एफिशिएंसी होती है किसी भी एंजाइम की. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच. तो इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच को, कि जनरली जो कोई भी एंजाइम वर्क करता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करता है या फिर किसी पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करता है. सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच. द temperature and pH at which an enzyme performs best is known as optimum temperature and pH. For example, in human body, the enzyme works best at 37 डिग्री सेल्सियस. तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो टेम्परेचर हो जाएगा, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस. तो इसीलिए आपने जनरली देखा होगा कि अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं वो बेस्ट कौन से टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो इसी वजह से अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारी बॉडी के जो भी प्रोसेसेस हैं वो बहुत स्लो हो सकते हैं या फिर फास्ट हो सकते हैं. तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिमम पीएच. तो एंजाइम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा. फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द एंजाइम विल वर्क एट 5 pH. तो 5 pH के आसपास किसी भी एंजाइम के लिए बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं. द नेक्स्ट इज एंजाइम इनहिबिटर्स. सो व्हाट आर द एंजाइम इनहिबिटर्स? The enzyme inhibitors are the chemical substances which either decrease the performance of enzymes or
इनहिबिट द वर्किंग ऑफ एंजाइम। तो इट मीन्स एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स की परफॉर्मेंस को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं या फिर उसको रोक लेते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी प्रोसेस बॉडी में हो रही है तो एंजाइम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। बट हो सकता है कि कुछ सर्टेन कंडीशन में हमको उतना फास्ट प्रोसेस नहीं चाहिए, तो फॉर दैट देयर आर एंजाइम इनहिबिटर्स। तो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो किसी भी एंजाइम के जो परफॉर्मेंस है उसको या तो डिक्रीज करते हैं या फिर उसको इनहिबिट करते हैं, उसको रोक देते हैं। तो होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसे कि आपको पता है कि जो एंजाइम कैटालिसिस होता है दैट इज़ हाईली स्पेसिफिक, मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम होता है और एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होता है। सेम वैसे ही जैसे कि किसी पर्टिकुलर लॉक के लिए कोई पर्टिकुलर की होती है, तो कोई भी लॉक किसी भी रैंडम की से ओपन नहीं हो सकता है या फिर किसी भी की को आप किसी रैंडम लॉक में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसे कि लॉक एंड की होती हैं वैसे ही आपके एंजाइम सबस्ट्रेट भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस, किसी भी आप कैटलिस्ट को जिसको आप एंजाइम कहते हो और किसी भी रिएक्टेंट को जो एंजाइम की हेल्प से होती है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे ये प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। एंजाइम को हम डिनोट कर लेते हैं ई से एंड सबस्ट्रेट को हम डिनोट कर लेते हैं एस से। एंजाइम विल एब्जॉर्ब द सबस्ट्रेट ऑन इट्स सरफेस एंड विल फॉर्म अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन होके फॉर्म करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बट आप इनका शेप देख सकते हो, इनका जो सरफेस होता है, दिस सरफेस ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट एंटर कर सकता है या फिट हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही फिट होगा वहाँ पे, किसी भी शेप का सबस्ट्रेट फिट नहीं हो जाएगा। उसके लिए उसका कोई स्पेसिफिक शेप होना चाहिए। तो इसीलिए एंजाइम इतने स्पेसिफिक होते हैं। तो दे विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि सबसे पहले यही काम होगा। तो ये फॉर्म हो चुका है। देन दीज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब एक बार फॉर्म हो गए तो सरफेस पे केमिकल रिएक्शन होगी एंड इट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो प्रोडक्ट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द एंजाइम। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला स्टेप वन दैट इज द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम। तो स्टेप 1 क्या है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट विल कंबाइन टू फॉर्म एन enzyme substrate complex. Then the second step, that is enzyme substrate complex will form enzyme and product. तो यहाँ पे 2 स्टेप्स में होता है और लास्ट में जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ सरफेस पे, प्रोडक्ट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द एंजाइम। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म हमको ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों कोई भी एंजाइम कैटालिसिस इतना स्पेसिफिक होता है। The next topic is shape selective catalysis of zeolites. So first of all you have to know what are the zeolites. Zeolites are the aluminosilicates of some metals and these have a property of being porous. इनका जो surface होता है zeolites का, उसमें कुछ pores होते हैं, कुछ बहुत फाइन होल्स होते हैं और इनकी वजह से दे हैव शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब ये हुआ कि वो किसी पर्टिकुलर शेप और साइज के पार्टिकल्स को ही अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब होने देते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर शेप या पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स ही उनके सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे तो उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की ही रिएक्शन उनके सरफेस पे हो सकती है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो अगर किसी का शेप या साइज उस पर फिट नहीं आता, क्योंकि पोर्स जो होते हैं इनके सरफेस पे वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे पोर्स की वजह से जो सर्टेन सेलेक्टिव सब्सटेंसेस होंगे वही उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे और अगर वही सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होंगे तो उसी सब्सटेंस की इसमें रिएक्शन हो सकती है, तो वो उसी रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। सो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे जियोलाइट्स का यूज होता है जिनको हम यूज करते हैं एज कैटलिस्ट
फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा ZSM5। तो ZSM5 जो अल्कोहल है, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, गैसोलीन में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ZSM5 जो कि क्या है, एक जियोलाइट है। तो ऐसे ही बहुत सारे जियोलाइट्स यूज़ होते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए फॉर कैटालिसिस। तो होप कि आपको इस लेक्चर के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।